Hey everybody, Varun here from Language Academy. Guys, welcome back to another video. This video we are going to look at the reading module. One of the modules a lot of students do find very difficult. In this video, I'll be telling you how you have to score 79 plus in reading. I'll be taking an extensive reading mock test which is available on languageacademy.com.au. I'll be sharing my screen with you. Will tell you that how I attempt read aloud, reading blanks, reading writing blanks, and all the other areas or tasks which contribute towards your reading module, right? This video is going to be in Hindi, and English version of this video will be out very soon. If you do not speak or understand Hindi, very sorry, but I'll try to upload an English version very soon. भाई ये वीडियो होगा हिंदी में रीडिंग का एक कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट करूंगा जो फ्री में अवेलेबल है languageacademy.com.au पे। उसमें पहले रीड अलाउड आएंगे, फिर समराइज रिटन टेक्स्ट आएगा, फिर रीडिंग मॉड्यूल आएगा, फिर हाईलाइट करेक्ट समरी और हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स आएंगे। इससे आपको बिल्कुल क्लियर पता लग जाएगा कि रीडिंग मॉड्यूल में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और आपने स्कोर मैक्सिमाइज कैसे करना है। ठीक है, विदाउट एनी फर्दर डिलेस मैं शेयर करता हूँ अपनी स्क्रीन, मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। आप देखना कि मैं किस स्पीड पे रीड अलाउड करता हूँ, रीडिंग ब्लैंक्स कैसे सॉल्व करता हूँ एंड एवरीथिंग, सो दैट आपको भी पता हो कि कैसे इजी तरीके से आपने स्कोर लेने हैं। लेट्स गेट ऑन। रीड अलाउड के लिए मुझे हेडसेट चाहिए होगा। मेक श्योर अपना माइक्रोफोन यू डोंट कीप इट टू क्लोज टू द माउथ, डोंट कीप इट टू फार, जस्ट कीप इट पैरेलल टू योर माउथ, राइट, अराउंड 4-5 फिंगर्स अवे। क्योंकि माइक्रोफोन जो पियर्सन का टेस्ट देने आप जाते हो बहुत सेंसिटिव होता है और अगर बहुत क्लोज होगा सारी हवा इसके अंदर जाएगी। सो जस्ट कीप इट पैरेलल टू योर माउथ प्लीज। तो आप भी लोग languageacademy.com.au पे जाकर रजिस्टर करके ये एक्सटेंसिव मॉक टेस्ट में जाकर टेक टेस्ट, एक मॉक टेस्ट आपको ये फ्री मिलेगा, कर सकते हो, राइट। लेट्स स्टार्ट। Sydney is Australia's. After you have spoken, click on the stop button. After you have spoken, click on the stop button. Alright, let's start. पहले रीड अलाउड आएगा, फिर समराइज रिटन टेक्स्ट, देन रीडिंग, हाईलाइट करेक्ट समरी एंड हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स, अराउंड 52 मिनट्स। ऑलराइट, अगर आप चाहो आप वन लाइन स्ट्रैटेजी से भी अटेम्प्ट कर सकते हो, फुल से भी कर सकते हो। वन लाइन स्ट्रैटेजी एग्जाम में ऐसा फीचर नहीं होता है, एग्जाम में आपको सिलेक्ट नहीं करना पड़ता है, बट आप वन लाइन स्ट्रैटेजी आप एग्जाम में भी फॉलो कर सकते हो। Modern buildings have to achieve certain performance requirements, at least to satisfy those of building codes and to provide a safe, healthy, and comfortable environment. However, these conditioned environments demand resources. Modern buildings have to achieve certain performance requirements, at least to satisfy those of building codes to provide a safe, healthy, and comfortable environment. However, these conditioned environments demand resources in energy and materials, which are both limited in supply to build and operate. COVID-19 has made clear that Americans who are most likely to be hungry are also at highest risk of diet-related diseases, including obesity, diabetes, heart diseases, and many cancers, a harsh legacy of inequities. COVID-19 has made clear that Americans who are most likely to be hungry are also at highest risk of diet-related diseases, including obesity, diabetes, heart disease, and many cancers, a harsh legacy of inequities and structural racism in our nation. Food is essential both for life and human dignity. Every day I see hunger, but the hunger I see is not only for calories. Food is essential both for life and human dignity. Every day I see hunger, but the hunger I see is not only for calories, but for nourishing meals. With a new focus on nutrition security, we embrace a solution that nourishes people instead of filling them with food. In the 1960s, a national focus on hunger was essential to address major problems of undernutrition after World War II. In the 1990s, the nation shifted away from hunger toward to better capture and addresses the challenges of food access and affordability. A smoking ban is a public policy that includes criminal laws and health regulations that prohibit smoking in certain public places and workspaces. There are varying definitions of smoking employed in this legislation. The strictest definitions define smoking as being the inhalation of any tobacco substance, while the loosest define smoking as possessing any lit tobacco product. So that was a read aloud. Now we are on summarize written text. Summarize written text, we have to write around 50-60 words. Maximum is 75, minimum is 5, only one full stop, right? You have to select 3-4 sentences with important keywords. We'll write the first sentence. Then we can write this sentence in 2005. Let's start and then we'll see. English is the world's lingua franca.
The language of science, technology, business, diplomacy, and popular, comma, and make sure you don't use any full stop. Just write. You have to write the sentences exactly the same. Select 2 to 3 sentences. Join using connectors. In I will not be capitalized because we are not starting a new sentence. But European E will be capital because it's capitalized in the middle of the passage as well. More than half of EU citizens are bilingual, and not just because they live in countries like Luxembourg with multiple official That's it, I guess. We can include another sentence, but then I don't really want to go more than 70-75 words, so this is fine. We'll quickly proofread. English is the world's lingua franca, the language of science, technology, business. Yep, that's it. Let's move on. All right. Academic writing refers to a style of dash that a style, right? So there should be a singular word here, style of improvement. Yes, I guess. Writing can be a style of utterance is verbal declaration, impression, or expression you express with writing. That researchers used to define intellectual boundaries of the disciplines and specific areas of dash. Specific areas of किस चीज के specific areas होंगे? Of expertise. Not expert. Expert is a person. Proficient again is used to define a skill. Expertise. Areas of expertise. Characteristics of academic writing include a formal tone, use of the third person, than rather than होना चाहिए यहाँ पे हमेशा than से पहले rather than आता है जब भी compare होता है third person rather than the first person, a clear focus on the research problem, under investigation होता है हमेशा this is under investigation. Like specialist languages adopted in other professions such as law or medicine, academic writing is designed to convey agreed meaning about complex ग्रुप ऑफ डैश एक्सपर्ट्स. अब यहाँ पे आ गया अ ग्रुप, मतलब एक ग्रुप है डैश एक्सपर्ट्स का. एक ग्रुप किसका होगा? एक्सपर्ट आगे नाउन, तो इससे पहले एडजेक्टिव टाइप होना चाहिए, राइट? या फिर ऐसा कोई वर्ड होना चाहिए जो एक्सपर्ट्स के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन बताए, जैसे अ ग्रुप ऑफ गुड बॉयज, अ ग्रुप ऑफ बैड बॉयज, अ ग्रुप ऑफ नॉटी बॉयज. सो अ ग्रुप ऑफ डैश एक्सपर्ट्स. स्कॉलर्स तो दोबारा नाउन आ गया. रेफरीड, एकेडमिशियन कोई वर्ड नहीं सुना मैंने आज तक. स्कॉलरली एक्सपर्ट्स, एकेडमिक तौर पे बहुत मजबूत एक्सपर्ट्स बोल सकते हो. द डॉन्टिंग, डॉन्टिंग होता है स्केरी बोल सकते हो आप, या बहुत डरावना बोल सकते हो. द डॉन्टिंग नंबर ऑफ जॉब्स लॉस्ट बाय वुमेन ड्यूरिंग द पेंडेमिक इज ओनली द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी. Yet it's widely recognized that women have taken the dash of the nations. They still down कि वुमेन को बहुत ज़्यादा जॉब लॉस हुआ है एज कम्पेयर टू मैन. उन्होंने ज़्यादा फेस किया. सो दे हैव टेकन द ब्रंट. बियर द ब्रंट या फेस द ब्रंट या टेकिंग द ब्रंट एक कॉलोकेशन याद रखना. बियर द ब्रंट, ब्रंट मतलब कि
नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, हार्श कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना, versus 4.6 million for men, even with the economy having dash somewhat of its COVID lows, having recovered होगा ना यहाँ, रिबाउंडेड होगा। अब यहाँ पे मेरे को पता था ईडी वाला वर्ड आएगा, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि अभी भी 5.3 मिलियन वुमेन्स को जॉब नहीं मिली है, इवन मतलब इसके बावजूद, या यद्यपि कि इकॉनमी कोविड 19 में जितना डाउन गई थी उससे रिकवर होना शुरू कर गई है। तो हैविंग रिकवरिंग नहीं होगा, हैविंग रिकवर्ड होना चाहिए। तो ईडी वाला वर्ड कितना है, गेन्ड तो नहीं होगा, हैविंग रीबाउंडेड मतलब वापस आ गई है। Largely because working remotely isn't possible in the hard hit businesses like restaurant, hotels, and retail stores where females dominate. And yes, it's also recognized that many moms were forced to drop out to look after the kids after school went dash. स्कूल वेंट्स, स्कूल क्या हो गए थे, रिमोट हो गए थे। रिमोट मतलब कोविड 19 में क्या हो गया था, बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, घर बैठ के करते थे। स्कूल वेंट रिमोट मतलब, रिमोट मतलब कहीं भी बैठ के आप अटेंड कर सकते थे स्कूल। With nearly 4 out of 10 currently working women still actively considering doing likewise, according to a survey. But what's not talked about as much is this, the potential long-term dash of having. Long term क्या होगा, impact ही होगा ना, असर पड़ेगा, consequences of having had the financial security and career prospects dash अपएंडेड। यहाँ पे क्या होगा, अपएंडेड। बाय से पहले क्या होता है, कंप्लीट, मेरे को नहीं पता यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा। बाय से पहले क्या होता है, कंप्लीटेड बाय, प्रोवाइडेड बाय, तो ईडी वाला वर्ड आना चाहिए। ईडी वाले कितने वर्ड हैं मोस्टली केसेस में, मैं आपको कह रहा हूँ, आपको प्रोबेबिलिटी यूज करनी है। ज्यादातर केसेस में बाय से पहले ईडी वाला वर्ड आएगा, तो आपको ऑप्शन खोलने से पहले ही सोच लेना कि यहाँ ईडी वाला वर्ड आएगा, फिर आप ऑप्शन खोलो, ठीक है। अपएंडेड का मतलब हो गया बिल्कुल उल्टा कर देना, राइट। कैरियर अपएंडेड, अपसाइड डाउन को बोल सकते हो। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स को काफी इम्पैक्ट कर दिया उसने, प्रभाव डाल दिया। It is widely believed that the dash of becoming exceptionally competent in certain fields, the dash of becoming, the chance नहीं होगा, chances of becoming होगा, the likelihood, या फिर the probability होगा, not probable, depends on the presence or absence of inborn dash variously labeled talents। inborn क्या होंगे, इनबॉर्न एट्रीब्यूट्स। एस वाला वर्ड क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे वेरियस है, एक से ज्यादा है, तो एस वाला वर्ड आएगा, जैसे टैलेंट्स, गिफ्ट्स, या फिर नेचुरल एप्टीट्यूड। अकॉर्डिंग टू एन इनफॉर्मल ब्रिटिश सर्वे, more than three-quarters of music educators who decide which young people are to receive instruction believe that children cannot do well dash, they have special dash gift। इनहेरेंस नहीं होता है, इनहेरिटेड होगा। innate gifts, innate gifts means natural। cannot do well until they have, until and unless, unless क्यों नहीं आएगा, unless until के बाद आता है, एक्सेप्ट होता है इसको छोड़ के। तो वो क्या म्यूजिशियंस या टीचर्स क्या बिलीव करते हैं, म्यूजिक टीचर्स, कि स्टूडेंट्स तब तक अच्छा परफॉर्म या इंस्ट्रक्शंस को नहीं फॉलो कर पाते जब तक उनके पास कोई नेचुरल गिफ्ट्स नहीं है। द जजमेंट दैट समवन इज टैलेंटेड इज बिलीव टू हेल्प एक्सप्लेन द पर्सन सक्सेस। इट इज ऑल्सो वाइडली assumed दैट द innate, यहाँ पे आगे देखो innate वर्ड, talent that makes it possible for an individual to excel can dash, can be detected, not be detecting नहीं होगा, can detect। अब जो मान लो मेरे अंदर कोई टैलेंट है, वो बचपन में क्या होगा उसके बारे में मेरे घर वालों को पता लग जाएगा, तो इट कैन बी डिटेक्टेड इन द चाइल्डहुड। दैट्स इट, मुझे तो ये लगता है सही है। लेट्स मूव ऑन, आई एम डूइंग माई बेस्ट, बाकी बाद में हम आंसर देख ही लेंगे। सो एन इंडिविजुअल्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी dash careful planning, goal setting, and the flexibility to adjust strategies when unplanned situations arise, situation arise होती है हमेशा, ठीक है। So an individual's financial stability dash, हाँ, फाइनेंशियल स्टेबल होने के लिए आपको क्या चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिक्वायर्स प्लानिंग, गोल सेटिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी। In fact, one of the things that jumps out at you in the study is the dash difference in sentiment between those with a financial strategy, whether developed before or during 2020. In the study is the stark difference, एक collocation है, sheer बहुत extreme को बोल देते हैं, stark difference होता है obvious difference, absolute difference होगा absolutely नहीं होगा, pure difference won't make any sense।
What we'll call the armed and the unarmed. 68% of the armed respondents reported feeling financially stable, and 69% of them financially dash the latter, meaning they could dash or recover quickly from फाइनेंशियल कंडीशंस। इसका क्या मतलब, 68% बंदों ने बोला कि वो फाइनेंशियल स्टेबल है, एंड जो 68% है उसके 69% है, मतलब कि मोर देन हाफ ऑफ द 68% ऑफ देम दे टोल्ड फाइनेंशियली, वो फाइनेंशियली कुछ है, मतलब कि वो क्विकली रिकवर कर सकते हैं। सो फाइनेंशियली अनस्टेबल तो नहीं हुए वो, रिजिलियंट हो। रिजिलियंट मीन्स ब्रेव या स्ट्रांग बोल सकते हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग, कि अगर कुछ उनको इशू आता भी है तो दे कैन रिकवर, दे कुड डैश और रिकवर क्विकली, विद स्टैंड, दे कुड बी बियर्ड होना चाहिए, दे कुड बी डैमेजिंग, बी रेजिस्टिंग, विद स्टैंड होना चाहिए यहाँ पे। One of the dash topics taught in first year undergraduate chemistry courses. One of the dash topics taught in the first year. फंडामेंटल टॉपिक्स ही होगा, एसेंशियल्स टॉपिक्स दो ऐसे तो आएंगे नहीं। फंडामेंटल टॉपिक्स मतलब बेसिक टॉपिक taught first year undergraduate chemistry course is the organization and layout of periodic table. However, many university students consider it a dash and difficult subject. अब यहाँ पे difficult है, राइट? तो यहाँ पे भी नेगेटिव वर्ड आना चाहिए, daunting। इनक्रेडिबल और चीयरिंग पॉजिटिव वर्ड आ गया। फॉरबिडन इज माफ करना। डॉन्टिंग अभी मैंने आपको पहले बताया भी था ब्लैंक्स में, डॉन्टिंग मतलब जो स्केरी लगता है। प्रॉम्प्टिंग प्रोफेसर्स टू सीक न्यू वेज टू एंगेज द स्टूडेंट्स एंड मेक इट्स कंसेप्ट मोर। देखो कंसेप्ट इजी करेगा ना, अब मैं एजुकेटर हूँ, मैं आपके लिए चीजें इजी करूंगा तो ऑप्शनल तो नहीं करूंगा। रेजिस्टेंट होता है किसी चीज को, आप बोलते हो कि फायर रेजिस्टेंट, जो फायर प्रूफ, तो प्रूफ भी नहीं होगा, मोर एक्सेसिबल हो सकती हैं चीजें, ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग, आई एम बिट कंफ्यूज, बट एक्सेसिबल मेरे को सबसे, कंसेप्ट मोर ऑप्शनल नहीं होंगे ना, कंसेप्ट थोड़ी ऑप्शनल हो जाएंगे, एक्सेसिबल कर देते हैं। प्रीवियस, अब कई बार ऐसा होगा आपके साथ जब आप कंफ्यूज होगे तो यू जस्ट हैव टू गिव योर बेस्ट। प्रीवियस एजुकेशनल स्टडीज डैश द टेबल इन डिफरेंट स्टडीज प्रेजेंटेड। प्रीवियस है तो पास्ट में आएगा, आर प्रेजेंटिंग नहीं आएगा। आर गोइंग टू प्रेजेंट फ्यूचर में होगा, प्रेजेंटेड पास्ट में पहले वाली स्टडीज में, such as this is this, and colleagues reasoned that introducing the periodic table with familiar items could also help. And rather than मैंने आपको सिखाया था अभी, teaching the full details right away, the researchers wanted to focus on some of its characteristics first, using a contemporary, engaging and multi-level। यहाँ पे अ है, ए मतलब यहाँ पे जो नाउन है सिंगुलर आएगा, ए के साथ एडजेक्टिव कंटेम्प्रेरी भी आ गया, एंगेजिंग भी आ गया, मल्टी लेवल क्या होगा, सिंगुलर वर्ड। कंटेक्सुअल प्लानिंग्स तो गया, टेक्टिकल या स्ट्रैटेजी, मल्टी लेवल स्ट्रैटेजी होगी। That's how you have to solve it, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना। What does the reader of this text learn about John? जल्दी आप पढ़ लो, अगर आपको पता लगता है एक ऑप्शन निकाल लो, जॉन रॉबर्टसन के बारे में पता लगता है। When he was awarded honorary degree, even यहाँ पे लिखा हुआ है कि he was ahead of his time, इसका ये कर देते हैं, his abilities were evident, बट इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, जरूरी नहीं है। स्टार्ट होगा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस से। मैनी ऑफ द मेजर सुपरमार्केट चेन्स हैव कम अंडर फायर, ये इंट्रोड्यूस कर रहा है सेंटेंस को, ठीक है। Many of the major supermarket chains have come under fire with accusations of various unethical, बहुत सारी सुपरमार्केट्स पे अंडर फायर आया, मतलब कि उन पे आरोप लगे हैं बोल सकते हो आप, या उनका नाम खराब हुआ है, क्योंकि उन्होंने बहुत अनएथिकल प्रैक्टिसेस की हैं पिछले 10 सालों में। उन्होंने क्या क्या किया हुआ है, ओके, दे हैव वेस्टेड, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आ गई क्या क्या बुरा किया हुआ है। अंडरपेड देयर सप्लायर्स, प्लास्टिक वेस्ट किया है। बट सुपरमार्केट्स आर स्टार्टिंग टू सिट अप एंड टेक नोटिस, बट अब सुपरमार्केट्स इसको कंसिडर कर रही हैं, दे आर टेकिंग अ नोटिस एंड दे आर ट्राइंग टू मेक अप फॉर इट। और इसके रिस्पॉन्स ने उन्होंने क्या किया है, इसको पढ़ लो एक बार। बहुत सारी सुपरमार्केट्स पहले तो आरोप लगे उन्होंने ये किया था, लेकिन अभी वो इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, और कंज्यूमर बैकलैश को लेके वो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं कि प्लास्टिक वेस्ट कम कर देंगे,
पैकेजिंग अपनी अच्छी करेंगे एंड ऑल। दिस इज व्हाट आई थिंक इज द राइट आंसर। रीऑर्डर्स पे भी मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ, इनको एक बार पढ़ लेते हैं। द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आ गया, डेटा आ गया। इट भी पहला सेंटेंस नहीं होगा, अ न्यू स्टडी हो सकता है क्योंकि दिस भी नहीं होगा। ये सारे सेंटेंस द भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए होता है, और इट तो होगा ही होगा, दिस भी किसी चीज़ के लिए होगा। सो अ न्यू स्टडी published in the journal shows definitive evidence of organic matter on the surface of Mars। ऑर्गेनिक मैटर है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर आ गया, द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और हाँ मार्स के बारे में ही है, तो लेट्स गो दिस। आपको सेंटेंसेस कनेक्ट करना है। द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वर फाउंड इन मार्स क्रेटर, अ लार्ज एरिया दैट हैव बीन वाटरी लेक ओवर 3 बिलियन ईयर्स अगो। इससे क्या पता लगता है हमें? इट कंफर्म्स दैट रेड प्लैनेट जो मार्स है वो एक बारी कार्बन बेस्ड कंपाउंड था जहाँ पे वाटर हो गया। फिर यहाँ पे कंपाउंड्स आ गया, यहाँ पे दीज कंपाउंड्स आ गया। ठीक है, ये दोनों तो पक्के पेयर हैं। ठीक है, ये दोनों तो पक्के पेयर हैं क्योंकि दीज कंपाउंड्स हो गया, कंपाउंड्स हो गया, और यहाँ पे दीज कंपाउंड्स हो गया। अब द डाटा लास्ट में नहीं जाएगा क्योंकि इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। द डेटा वाला सेंटेंस यहाँ जा सकता है। A new study published in the journal Science shows definitive evidence of organic matter of the data was collected by NASA's nuclear powered rover Curiosity। देखो अब हमारे पास ये रह गया, ठीक है। इनके बीच में तो ये जाएगा नहीं और एंड में भी जाएगा नहीं क्योंकि इसका इन दोनों का कोई पेयर नहीं बन रहा है एंड में। इन दोनों का बीच में पेयर नहीं बन रहा है। अब यहाँ तो अगर यहाँ जाएगा तो यहाँ पे इट इट है यहाँ पे, ठीक है। इट कन्फर्म्स मतलब इसके पिछले वाले सेंटेंस में कुछ कंफर्म होना चाहिए। कंफर्म कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे जहाँ पे वाटर मिला है। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे अ न्यू स्टडी और द डाटा या डेटा, जो न्यू स्टडी से डेटा हमें मिला है। दैट्स द बेस्ट आई कैन थिंक ऑफ। लेट्स मूव ऑन। कितना टाइम रह गया? टाइम भी कम है हमारे पास। वाटर डैश अप नियरली मेक्स अप, वाटर मेक्स अप नियरली 3 क्वार्टर्स ऑफ द अर्थ। वाटर है, सिंगुलर के साथ एस वाला वर्ब जाएगा। 3 क्वार्टर्स ऑफ द अर्थ surface, but it does more than just cover a planet, it also plays a dash role। कौन सा रोल होगा? बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि इम्पोर्टेंट रोल, बट इम्पोर्टेंट के साथ हमेशा एन इम्पोर्टेंट आता है, तो वाइटल रोल आ जाएगा। वाइटल मतलब इम्पोर्टेंट ही होता है बट एक सिनोनिम है उसका। कंसिडरिंग द ग्रैंड कैन्यन measuring 277 miles long, 18 miles wide and more than 1 mile deep, it dash it के साथ एस वाला वर्ड जाना चाहिए, राइट। या फिर एस वाला वर्ड इट प्लेस के साथ यहाँ पे नहीं जाएगा क्योंकि वन है, तो वर्ब नहीं आएगा यहाँ पे। अगर वर्ब आएगा तो जैसे हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा, जैसे इट इज इम्पोर्टेंट, इट इज कंसीडर्ड वन ऑफ द सेवन नेचुरल। आई एम कंफ्यूज अबाउट दिस, इसको छोड़ देते हैं, अभी नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे सेकंड या थर्ड ब्लैंक गलत कर दिया, लेट्स से मैंने फिफ्थ का आंसर गलती से थर्ड वाले में डाल दिया, तो फिफ्थ भी गलत होगा, थर्ड भी गलत होगा। तो इट्स बेटर जो श्योर है वो पहले भरो एंड देन कम बैक टू द अदर वंस। दिस जियोलॉजिकल डैश was created by the waters of the Colorado River। दिस जियोलॉजिकल मार्वल हो सकता है, ग्रैंड कैन्यन की बात कर रहे हैं। मार्वल मीन्स एक बड़ी चीज बोल सकते हैं या इम्पोर्टेंट चीज। Was created by the waters of Colorado River through the processes of weathering and erosion। Weathering is the process by which moving water breaks down soil, rock, and minerals, and erosion is the process by which the flowing water transports soil and rock from one spot and deposits it elsewhere। The two processes often occur in conjunction, मतलब एक दूसरे के साथ होते हैं, ये याद रखना। इट के साथ क्या होगा? इट टुगेदर नहीं होगा, इट कंसीडर्स नहीं होगा। अब ग्रैंड कैनियन थोड़ी कंसीडर करेगा, एक ह्यूमन कंसीडर करेगा, तो इट इज कंसीडर्ड, वो माना जाता है। लेट्स डू दिस एंड मूव ऑन। कैफीन इज अ स्टिमुलेंट दैट डैश नेचुरली। कैफीन इज अ स्टिमुलेंट मतलब वो हमारी बॉडी को स्टिमुलेट या प्रभाव डालता है उस पर, दैट डैश नेचुरली इन कॉफी बीन्स। कॉफी बीन में क्या करता है? वो अकर करता है, दैट अकर्स इन कॉफी बीन एंड कोको बीन्स। Commercial energy drinks, snacks, and many other foods also have added caffeine। Dash consumption of this stimulant may कंजम्पशन कॉफी पी के क्या होता है? अलर्ट हो जाता है, नींद खुल जाती है, तो इंक्रीज अलर्टनेस, कॉग्निटिव फंक्शन एंड वेट लॉस।
Reduce या increase? Increase. Okay, let's go with increase. A 2019 review of 21 published meta-analysis suggests that caffeine can increase exercise performance by anaerobic power, aerobic endurance, by enhancing. क्या पावर को क्या करेगा वो, राइट? By enhancing power, endurance, and strength. Data also show that caffeine's positive effect on these performance markers is more marked, नहीं होगा, more induced, more pronounced. Pronounced means visible बोल सकते हो आप. More higher नहीं होगा, more happens नहीं होगा. Pronounced is the right one. यहाँ पे क्या आएगा? Dash consumption. अब दो ऑप्शन है, एक हायर है एक मॉडरेट, है ना? हायर हम यूज कर सकते हैं, बट हायर कंजम्पशन, हायर मतलब बहुत ज्यादा कंजम्पशन. कॉफी बहुत ज्यादा पीने से अलर्टनेस नहीं बढ़ेगी. बहुत ज्यादा कॉफी पी लोगे तो बॉडी को इम्पैक्ट होगा. और यहाँ पे मे है, बहुत ज्यादा से तो पक्का ही होगा. मे मीन्स चांसेस है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता. तो मॉडरेट कंजम्पशन मतलब कि ठीक ठीक मात्रा में कॉफी लेने से हो सकता है कि आपकी अलर्टनेस इंक्रीज हो जाए. बट अगर हायर है तो यहाँ पे मे नहीं आएगा वर्ड. दैट्स व्हाट आई थिंक. लेट्स मूव ऑन. Researchers from Chalmers University of Technology have dash a structure. ये researchers have created, ऐसा कुछ होगा, ed वाला word आएगा यहाँ पे. A battery that performs 10 times dash than all previous versions. 10 times better. 10 times better. नई बैटरी बनाई है रिसर्चर ने तो पिछले बैटरी से 10 टाइम बेटर है. इट डैश कार्बन फाइबर. इट के साथ प्लूरल वर्ड आएगा, मतलब ऐसा वाला वर्ड आएगा. कंसिस्ट या कंटेन्स. कंसिस्ट के साथ ऑफ आता है हमेशा. सो कंटेन्स कार्बन फाइबर दैट सर्व साइमल्टेनियसली एज एन इलेक्ट्रोड कंडक्टर एंड लोड बेरिंग मटेरियल. देयर लेटेस्ट रिसर्च डैश पेव्स द वे. कोलोकेशन याद रखना. लेटेस्ट रिसर्च, देयर लेटेस्ट रिसर्च ब्रेक थ्रू होगा, कंडक्टेड होगा. ओके, फर्स्ट वाला भरते हैं एक बार. रिसर्चर्स हैव प्रोड्यूस्ड या कंडक्टेड. कंडक्टेड तो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे, बैटरी बना दी उन्होंने, ठीक है. देयर लेटेस्ट रिसर्च, रिसर्च क्या होगा? कंडक्टेड पेव्स द वे नहीं होगा, ब्रेक थ्रू होगा ना. आई थिंक जो रिसर्च ब्रेक थ्रू मतलब कि इन्होंने एक हासिल कर लिया मुकाम, जिससे कि पेव्स द वे अब इसको रास्ता दे देगा ताकि मासलेस एनर्जी स्टोरेज हो जाए व्हीकल्स में और अदर टेक्नोलॉजीज में. लेट्स सी हाउ वी गो. King had won the Nobel Prize in 1964, and his higher profile would help draw international attention to 𝗖𝗍𝗀 during eventful months that followed. On February 18, white segregationists attacked a group of demonstrators. Peaceful demonstrators. यहाँ पे एक ग्रुप ने अटैक कर दिया. मे बी पीसफुल, मे बी ब्रूटल. लेट्स मूव ऑन. In dash to Jackson's death. In response to Jackson's death और in drawing to. In drawing to भी कई बार यूज होता है, बट ज्यादातर in response to यूज होता है. Planned a massive protest. March from this to this. A group of 600 people scattered on Sunday, March 15, but didn't get far before Alabama state troopers wielding whips, nightsticks and tear gas rushed the groups. अब यहाँ पे इन्होंने मार्च प्रोटेस्ट किया कि एक धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन वहाँ पे टीयर गैस वगैरह छोड़ा गया जिसके कारण वो आगे नहीं जा पाए, उनको भगा दिया मार के वापस. द डैश सीन वॉज कैप्चर्ड. ब्रूटल होना चाहिए यहाँ पे. Enraging many Americans and dash civil rights and dash civil rights. Enraging many Americans. जो ये सीन कैप्चर हुआ इसने एक तो अमेरिकन को बहुत गुस्सा दिलाया, और जो पीसफुल सिविल राइट्स एंड रिलीजियस लीडर्स ऑफ ऑल. I'm a bit confused about this one. Do you play video games? If so, थोड़ा टाइम भी मैनेज करना पड़ेगा, जल्दी करना पड़ेगा. If so, you aren't alone. Video games are becoming more dash
more common and are increasingly enjoyed by adults. The average age of gamers dash जो गेम खेलने वालों की उम्र बढ़ रही है और अब 2016 में एवरेज एज 35 थी. चेंजिंग टेक्नोलॉजी ऑल्सो मीन्स दैट मोर पीपल आर एक्सपोज टू वीडियो गेम्स. मैनी कमिटेड गेमर्स प्ले ऑन डेस्कटॉप कंप्यूटर्स. कंप्यूटर्स के साथ एस वाला वर्ड आएगा और यहाँ पे जैसे बॉयज और गर्ल्स एस वाले वर्ड कितने हैं. एक अफेक्ट से कंसोल्स है तो कंसोल होते हैं गेमिंग कंसोल्स. But a new breed of casual gamers has emerged who play on smartphone and tablets at spare moments throughout the day. कि ये तो हो गए कमिटेड गेमर्स जो गेम है सारा दिन खेलते हैं कंप्यूटर पे, लेकिन अब कैजुअल गेमर्स पे आ गए जो कभी कभार खेलते हैं अपने फ़ोन पर या टैबलेट्स पे ड्यूरिंग द डे जब भी टाइम मिलता है, लाइक मॉर्निंग कम्यूट, सुबह पे काम जाते जाते. सो वी नो दैट वीडियो गेम्स आर एन इंक्रीजिंगली कॉमन फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, बट डू दे हैव एनी डैश ऑन आवर ब्रेन? अफेक्ट्स और इफेक्ट. अफेक्ट्स होता है एक वर्ब, अफेक्ट्स होता है असर डालना, इफेक्ट होता है नतीजा. इसका कोई असर पड़ेगा एंड में, कोई प्रभाव है इसका, इसका एंड में नतीजा है. एनी अफेक्ट्स, अफेक्ट्स इज यूज्ड फॉर समथिंग इज गोइंग ऑन. फॉर एग्जांपल कंप्यूटर स्क्रीन अफेक्ट्स द आईज, दिस विल इफेक्ट, राइट, कि उसका बाद में असर पड़ेगा. दैट्स इट. एमसीक्यू में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, जस्ट सेलेक्ट सी एंड मूव ऑन. ओके, वी हैव गॉट हाईलाइट करेक्ट समरी. इसमें नोट्स बनाएंगे हम. Just about every nation in the world, to some extent, admits immigrants. But there's something unique about America. We don't simply welcome new immigrants, we don't simply welcome new arrivals, we are born of immigrants. That is who we are. Immigration is our origin story. And for more than 2 centuries, it's remained at the core of our national character, it's our oldest tradition. It's who we are. It's part of what makes us exceptional. After all, unless your family is Native American, one of the first Americans, our families, all of our families, come from someplace else. With everything else going on in the world, it's easy to forget one of the most important topics our country has been hesitant to deal with: immigration. Our dependence on foreigner workers is one of the major reasons we are having a Sputnik moment, as President Obama called it in his recent State of the Union address. Many argue that we need immigrants to take jobs natives deem beneath them. Others claim L1B foreign workers are necessary because not enough skilled American workers exist to fill such positions. Both of these beliefs are undermining the true strength of America and gradually degrading her future. पैसेज जो लेक्चर था उस किसके बारे में था कि जैसे अमेरिका इजीली माइग्रेंट्स को नहीं लेता, दूसरे देश ले लेते हैं. फिर उन्होंने बताया कि कौन कौन से वीज़ास पे होते हैं, फिर जॉब लॉसेस के बारे में बताया, फिर स्पुतनिक मूवमेंट ओबामा, राइट. तो हमने वो सेंटेंस करना है जो ओवरऑल आइडिया कैप्चर कर रहा है. इसमें सारा कुछ है, ओबामा भी है, स्पुतनिक मूवमेंट भी है, बाकी पैसेजेस में देखो बहुत एक वेग सा आइडिया दिया गया है, बट इसमें स्पुतनिक मूवमेंट के बारे में बात की है, ओबामा के बारे में. सो आई थिंक दिस समराइजेज द बेस्ट, बट हमें ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना है. सो आई जस्ट सिलेक्ट दिस. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके रीडिंग में नंबर जाते हैं, तो यू हैव टू गिव योर बेस्ट. रिमेंबर दिस. France, officially French Republic, French France or République Française, country of northwestern Europe. Historically and culturally among the most important nations in the Western world, France has also played a very significant role in international affairs, with former colonies in every corner of the world. Bounded by the Atlantic Ocean and the Mediterranean Sea, the Alps and the Pyrenees, France has long provided a geographic, economic, and linguistic bridge joining Eastern and Western Europe. It is Europe's most important agricultural producer and one of the world's dominating industrial powers. The eastern gray tree frog looks exactly like the closely related Cope's gray tree frog. The big difference between the two species is beneath the surface. The eastern has twice the number of chromosomes as does the Cope's. Having more sets of chromosomes makes the cells of the eastern frog larger than the cells found in the Cope's. And those bigger cells make the eastern song just a little deeper. Now University of Missouri researcher Carl Gerhardt and his student Mitch Tucker have determined that the slight difference in the calls, "here's the eastern again and here's the Cope's," is how the females know which species males to buddy up with.
the ones with the same chromosome number that they have. The work is in the Proceedings of the Royal Society B Biological Sciences. Speciation is often caused by a geographic barrier that keeps populations from mating. But the tree frog situation may be a rare case in which chromosome duplication, and its subsequent effects, presented a reproductive barrier. As in humans, it comes down to whether he calls. That's it, I think. I'll just submit it, and that's it. Go to dashboard. Result will be out pretty soon. तो भाई हो गया रीडिंग का एक्सटेंसिव मॉक टेस्ट। थोड़ा सा रीडिंग के जो ड्रैग एंड ड्रॉप ब्लैंक्स थे स्लाइटली मुझे चैलेंजिंग लगे। रीड अलाउड ठीक थे, नॉट बैड। एक दो रीड अलाउड शुरू शुरू में आई वाज नॉट फीलिंग वेल, आई वाज हैविंग सम इचीनेस इन द थ्रोट, सो थोड़ा आई वाज आउट ऑफ ब्रेथ। आई नो आई मेड फ्यू मिस्टेक्स। रीड अलाउड में मैंने क्लैरिटी पे फोकस करा। समराइज रिटन टेक्स्ट मैंने अराउंड 56-57 वर्ड्स लिखे, 3 सेंटेंसेस जॉइन कर दिए यूजिंग कनेक्टर्स। एंड देन वी हैड रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स फाइन थे। रीऑर्डर्स एक में मैं कंफ्यूज था एक सेंटेंस को लेके। एमसीक्यू सिंगल और मल्टीपल में मैंने टाइम नहीं दिया। ड्रैग एंड ड्रॉप पे एक दो में मैं कंफ्यूज था पैसेजेस में। हाईलाइट करेक्ट समरी पे भी ज़्यादा टाइम नहीं दिया। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड सेम थे। लेट्स सी इफ माय रिजल्ट इज आउट एंड देन हम थोड़ी सी और चीज़ें डिस्कस करेंगे। और रिजल्ट इज आउट। इफ यू हैव अ लुक ओवर हियर, आई हैव गॉट 79 एग्जैक्ट। लेट्स सी वेयर आई हैव गॉन रॉन्ग। ये यहाँ पे हमने टाइम नहीं लगाया, इट्स फाइन। 92% इन रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स, 84% हियर। इफ यू एमिंग फॉर 79, ये दोनों में आपके अगर 80 या 75 प्लस भी आ रहे हैं इट्स फाइन। रीऑर्डर 75 तक हो जाते हैं। आई थिंक जो पेयर में मैं कंफ्यूज था वो ही गलत हुआ है। लेट्स सी। बाकी ये 100% है, ये 100% है। इफ यू हैव अ लुक ओवर हियर, रीऑर्डर्स एक बार देखें कौन सा गलत हुआ है। या दिस इज व्हाट आई मेस्ड अप। तो ये दोनों पेयर, ये वाला सेंटेंस हमने कहाँ पे रखना था? ओके, इट पहले आना था एंड देन दिस हैज टू गो अर्लियर। द ऑर्गेनिक मॉड्यूल, ये गलत क्यों है एक बार देखो। ओके, ये एंड में आना था हमारा। दीज कंपाउंड्स, ओ माय गॉड, आर आल्सो कॉल्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इंट्रोड्यूस हुए हैं और यहाँ पे द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में बोला गया है। तो दिस शुड हैव बीन एट द एंड। अब मेरा एक सेंटेंस मैंने सही जगह डाला होता तो मेरे ये 80% हो जाते और रीडिंग 81 हो जाती। ठीक है, ये टेस्ट थोड़ा सा स्ट्रिक्ट तो है ही। हमने इस तरह से डिजाइन किया हो कि आप स्टूडेंट्स के 85-86 तक आए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट ना हो बच्चे। बट स्टिल आई हैव लॉस्ट 3-4 पॉइंट्स। एक दो मेरे रीडिंग राइटिंग ब्लैंक गलत हुए होंगे, ये वाला। ठीक है, क्या आई सिलेक्टेड कैन बी डिटेक्टेड राइट? यहाँ पे तो डिटेक्टेड ही सिलेक्ट किया था मैंने। ऑलराइट, मे बी आई सिलेक्टेड द रॉन्ग वन। So minor mistakes, but still, I managed to get 79, which is not a very good score. But the whole idea is to tell you कि भाई अगर आपके रीडिंग में स्कोर नहीं आ रहे हैं, पहले रीड अलाउड में मेरी 90% एक्यूरेसी है। अगर यहाँ मेरे रीड अलाउड भी 70% तक एक्यूरेसी होती तो मेरा स्कोर ना आता। आपको फोकस क्या करना है कि रीड अलाउड की क्लैरिटी पे फोकस करो। समराइज रिटन टेक्स्ट, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स, हाईलाइट करेक्ट समरी, चलो गलत हो भी जाए बट हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स, और आपका समराइज रिटन टेक्स्ट परफेक्ट होना चाहिए। रीडिंग ब्लैंक्स, रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स एटलीस्ट 80%। रीऑर्डर्स अगर 79 चाहिए तो 75%। अदरवाइज 60-65% इज फाइन एज वेल। और पेयर्स की लिंकिंग देखो कैसे करनी है कैसे नहीं करनी। ठीक है, अब मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप languageacademy.com.au पे जाओ। एक फ्री मॉक टेस्ट, जो फ्री एक्सटेंसिव रीडिंग मॉक टेस्ट पड़ा है, वो आप करके देखो। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, बच्चे कहते हैं हाँ आप हमने देख लिया, नहीं। यू हैव टू मेक श्योर कि आप खुद, जो आपको स्पीकिंग का एक्सटेंसिव मॉक भी मिलेगा, रीडिंग का भी मिलेगा, लिसनिंग का भी मिलेगा, राइटिंग का भी मिलेगा, आपको फ्री फुल स्कोर मॉक टेस्ट भी मिलेगा। आप languageacademy.com.au पे जाओ, वहां पे जाके प्रैक्टिस करो और देखो आपका कितना स्कोर आ रहा है। अगर 79 चाहिए तो एटलीस्ट 79 तो आना ही चाहिए। एक आधा नंबर ऊपर नीचे हो जाए इट्स फाइन, बट यस जो आपको एग्जाम में स्कोर चाहिए वो यहाँ पे मॉक टेस्ट में आएगा, तभी आप इम्प्रूव कर पाओगे। इन चीज़ों का ध्यान रखो, 100% इम्प्रूवमेंट आएगी।
मैंने थोड़ा सा रश किया था रीडिंग मॉड्यूल में, आपको नहीं करना है, थोड़ी सी चीजें समझ समझ के करनी है एंड यू विल बी 100% फाइन। कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एक बार हम देखते हैं कि ड्रैगन ड्रॉप ब्लैंक्स हमारा कौन सा गलत हुआ, राइट। आई थिंक जो किंग वाला था वो गलत हुआ होगा अपना। यप, किंग वाला ही गलत है। ऑनेस्टली आई थिंक कि कोई ना कोई इसमें टेक्निकल इशू है, क्योंकि इन रिस्पॉन्स टू मैंने किया था, इन ड्राइंग टू है यहाँ पे, एंड रिस्पॉन्स सिविल राइट्स यू नो वोंट मेक एनी सेंस। यहाँ पे तो डेथ्स हो रही हैं, तो यहाँ पे पीसफुल सीन तो नहीं आएगा। एंड यहाँ पे भी अटैक अ ग्रुप ऑफ, यहाँ पे फैटली शॉर्ट हो गया। पीसफुल डेमोन्स्ट्रेटर मैंने किया है, यहाँ पे ब्रूटल डेमोन्स्ट्रेटर्स है। सो समथिंग्स ऑफ ओवर हियर, बट यस आई डू एक्सेप्ट माय मिस्टेक कि भाई मुझसे भी कहीं गलती हुई है। दिस इज फाइन, दिस इज फाइन, दिस इज फाइन। तो एक ड्रैगन ड्रॉप ब्लैंक गलत हुआ है, मतलब एक पैसेज थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसमें 4 गलत हुए हैं, एंड एक ड्रॉप डाउन में 2 गलत हुए हैं, विच इज नॉट परफेक्ट। मैं तो परफेक्ट के लिए ही एम कर रहा था, बट यस आप ट्राई करो कि इससे भी बड़ी आपकी एक्यूरेसी आए, ताकि एग्जाम में कोई गलती ना हो। एक और चीज जो मैंने करी, ये किंग वाले में मैं थोड़ा डाउटफुल था, तो मैंने टाइम नहीं वेस्ट किया, जितना बेस्ट पता लग रहा था करके आई मूव्ड ऑन। क्योंकि ऑनेस्टली बताऊं, मैंने 12 बार एग्जाम दिया, मेरे रीडिंग में 90 आए हैं, पिछले सारे अटेम्प्ट्स में ओवरऑल भी 90 आए हैं। और मैं ये बात आपको हमेशा कहता ही हूँ कि जब आप एग्जाम के लिए जाओगे ना, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हर एक वर्ड का मीनिंग आपको पता होगा। ऐसे वर्ड आपको पक्का आएंगे ही आएंगे जो आपको मीनिंग श्योर नहीं होगा। तो आपने करना क्या है, जितना बेस्ट होता है आप सिलेक्ट करो एंड देन यू मूव ऑन। ये नहीं है कि यार इधर भी 4 चीजें गलत कर दी, इधर 2 चीजें गलत कर दी, दैट विल नॉट हेल्प यू एनी वे। You have to make sure you manage your time, increase the probability of you getting the right answers and move on. ये चीजें करोगे तो 100% इंप्रूवमेंट आएगी। पहले रीड अलाउड, समराइज रिटन टेक्स्ट और हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स पक्के कर लो, इनके अराउंड 40-45% स्कोर है। फिर दोनों रीडिंग ब्लैंक्स पे फोकस करो, एंड में रीऑर्डर्स पे फोकस करो। एमसीक्यू सिंगल, एमसीक्यू मल्टीपल, हाईलाइट करेक्ट समरी पे फोकस मत करो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सारे टास्क आपको रीडिंग में नंबर देंगे, और अगर जो मैंने आपको बताया आप करोगे तो आपके स्कोर आने के चांसेस बहुत हाई हैं। कोई भी डाउट है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। प्रैक्टिस करने के लिए आप जाओ languageacademy.com.au या LAPT एग्जाम प्रैक्टिस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। फाइनली, अगर आपको हेल्प चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, हमारे कैंपस ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, नेपाल में है। हम ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं, पीटी एकेडमिक, पीटी कोर की। अगर आप कनाडा में, अमेरिका में हो, डजेंट मैटर वेयर यू आर, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू, विल हेल्प you getting your desired scores without wasting your time and without wasting your money as well. We have helped more than 40,000 students till now, and I myself have got 12 times 19 PT, and I'll try my best कि मैं आपकी हेल्प करूं, ताकि आपका कोई भी स्कोर मिस ना हो। आप प्रैक्टिस करने के लिए LAPT एग्जाम प्रैक्टिस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, या languageacademy.com.au पे जाके फ्री में फुल स्कोर मॉक टेस्ट भी कर सकते हो, और ये सारे एक्सटेंसिव मॉक टेस्ट भी कर सकते हो। दैट्स इट। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और कौन से नेक्स्ट टॉपिक में वीडियो बनाऊं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, सो दैट आई गिव माई 100% टू हेल्प यू आउट, और आप लोगों का पहले अटेम्प्ट में डिजायर्ड स्कोर आए। थैंक यू, आई सी यू वेरी सून।